students, I am back with our next video from our chapter Nature and Significance of Management. Dear students, this is a very important topic, coordination, which we shall be discussing in this video. In this video, we shall be discussing coordination, its meaning and definition, coordination as an essence of management, need and importance of management, nature, characteristics, features of coordination, and a small worksheet for you all. Coordination. Dear students, you are able to see two pics in this slide. In the first pic, players are playing a football match. All of you know that if each player does not coordinate with the other players of the team, then they can never win. Every player has to coordinate or has to play with the other players as a team. So, coordination is very important in a match. In the second picture, you can see four small children. They are trying to walk with the help of a small toy. If one small kid does not coordinate with the other three, then obviously they will not be able to walk. But as you can see, all the four, they are trying to coordinate with each other, and then only they are able to walk with the toy they are having. So students, coordination, as you all know that in the previous slide we have studied 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. But students, there is also one more important function which every manager has to perform in addition to these 5 functions, and that function is coordination. Actually, coordination is the force which binds all the other functions of management which we have discussed in our previous slides. Coordination is the process by which the activities of the different departments are synchronized. Synchronized का मतलब यहाँ पर होता है make it happen at same time or with the same speed. जैसे कि अगर बच्चे एक दूसरे के साथ पीछे वाली पिक में चलने की कोशिश कर रहे थे तो वो उसी स्पीड से चलें और उसी टाइम पे चलें जिस टाइम पे दूसरे प्लेयर्स चल रहे हैं, तभी वो अच्छे से मूव कर पाएंगे. तो दिस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज. व्हाई डज दिस सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड? टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन. इफ देयर इज नो यूनिटी अमंग द मेंबर्स of the organization, neither the organization can achieve a goal, neither the players of football can achieve a win over the other team. For example, we can take production department and sales department. The production department plans and the sales department plans, and the decisions which they take, they must be coordinated among each other. For example, if sales department has planned to make a sales of 1 lakh units in the current year, but अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना 1 लाख का टारगेट ही नहीं बनाया है प्रोडक्शन करने का, तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट उस टारगेट को पूरा कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के जो भी प्लान्स होंगे, जो भी डिसीजंस वो लोग लेंगे, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में लेंगे, तभी वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कर पाएंगे. देयर इज अ डेफिनेशन विच वी विल बी डिस्कसिंग. डेफिनेशन में है कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस, सिंक्रोनाइजेस एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन and for the achievement of the business objectives. This definition of coordination is given by Henry Fayol. Dear students, there are some key terms which you must know in order to understand this definition. Try to learn this definition and surely write in your exams if a question comes from this topic. What does harmonizes means now? Harmonize means to be combined or go together in a pleasing or a satisfying way. That means every member, they have to combine and they have to go together in a satisfying way. That means every member should be satisfied so that
they can work in a pleasant way. Synchronizing का meaning to make something happen or work at the same time or speed. किसी काम को हमें करना है और उस काम को हम सेम टाइम में करें दूसरा जो कर रहा है और उसी स्पीड से करेंगे, तभी हमारी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज हो पाएंगी. तो कोऑर्डिनेशन के लिए सेकंड जो इम्पोर्टेंट वर्क किसी भी मैनेजर को करना होता है इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज. थर्ड की टर्म इज यूनिफाइज द इंडिविजुअल एफर्ट्स. Dear students, unity of action of individual efforts is very important. See, every employee in the organization, they comes as an individual and they try to achieve their individual goals as well. But their individual goals can only be achieved only when the organizational, that means the group goals is achieved. So, the unity of action is a pre-requirement for the achievement of the objectives. What are those objectives? We have studied objectives may be of three types: economic, social and personal objectives. So all these three objectives which an organization is having, they can achieve these objectives only with the help of coordination. Okay, now is the definition meaning clear to all of you? Now let us discuss a very important topic, coordination as an essence of management. Dear students, I have told you that coordination is the another function which is performed by a manager in addition to the 5 functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. But students, do you know that coordination is needed in all the functions of management? In the pic you can see all the 5 functions are there, but all these 5 functions, they cannot be performed by a manager if there is a lack of coordination among these 5 functions. Let us take an example. Now what the planning is done. The planning mainly policy making, strategy making, the major plans, the organizational objectives, they are decided by the top management. तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है इन सभी 5 फंक्शंस में. फर्स्ट है आपका टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो टॉप मैनेजमेंट है वो जो भी प्लानिंग करती है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती है, और ये पॉसिबल है थ्रू कोऑर्डिनेशन ओनली. बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं होगा दूसरे फंक्शंस के साथ तो प्लानिंग भी हमारी अच्छी नहीं होगी. सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डेवलप्ड आर as per the plans which are made in the planning function. That means organizational structure depend करता है कि हमारी planning कैसी है, तो हमें planning को ध्यान में रखते हुए ही organizational structure बनाना पड़ता है. Third है staff is recruited, selected and trained as per the organization structure and plan. Staffing के अंदर हम मैन पावर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन. सो जो भी स्टाफ हम रिक्रूट कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग और सिलेक्शन हमारे प्लान्स के बेसिस पे होगा और हमने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रखा है उसके बेसिस पे ही हम अपने स्टाफ को रिक्रूट करते हैं. फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग. डायरेक्शंस आर गिवन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स मेड. जो भी हमने प्लान्स बनाया है उन प्लान्स का एग्जीक्यूशन किया जाता है बाय द मैनेजर्स, और उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी दिशा निर्देश एक मैनेजर को देने हैं, डायरेक्शंस देनी है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है. सो डायरेक्शन फंक्शन में भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग ensure no deviation between plan and actual performance. कोऑर्डिनेशन में भी हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो हमने प्लानिंग कर रखी है और जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया है किसी भी वर्कर ने या मैनेजर ने, उसके अंदर कोई डिविएशन नहीं आना चाहिए. कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम
दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हमने जो अभी बताया आपको कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड at all the levels of management. Second, at all the levels of management. As you can see, there are three levels which we have discussed in our earlier video. There are three levels: top level, middle level and lower level. So coordination management में इन तीनों levels पे हमें ज़रूरत होती है coordination की। कैसे? Top level requires coordination to integrate all the activities of the organization. टॉप लेवल के जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, और तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी different activities of the different departments they can integrate together. That means they can bring together all those activities for the achievement of the main organizational goal. Middle level tries to balance the activities of the different departments. मिडिल लेवल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि वो अपने डिपार्टमेंटल गोल्स को अचीव कर सकें और साथ में कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। थर्ड इज लोअर लेवल। अब लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन किस लिए चाहिए? इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स, कि जो वर्कर्स हैं उन सब की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करा जाए, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करा जाए, तभी एक वर्कर अपना इंडिविजुअल गोल को अचीव कर पाएगा और वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। तो आपने देखा कि इन तीनों लेवल्स के ऊपर हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर कोई कंपनी कोऑर्डिनेट करने में फेल हो जाती है, दैट कंपनी कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ओनली कि एक मैनेजर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट कर सकता है इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स का हमारे कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। सो कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। Coordination makes sure that the planned objectives are achieved with minimum conflicts, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम अचीव कर लें और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, हम मिलजुल कर काम करें। Our next topic is nature and features of coordination. Dear students, the first feature of coordination, or we can say nature of coordination, is coordination integrates group efforts. The concept of coordination always applies to group efforts. जहाँ पर भी एक इंडिविजुअल है, आई थिंक वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल खुद ही उसे सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, खुद ही उसे डिसीजन लेना है, तो उसे किसी के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स पुट अप करे जाते हैं, देयर इज़ अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर ऑर्डरलीनेस. Integration arises only when more individuals from different departments are working. So different background से individuals आते हैं, इसीलिए हमें वहाँ पे orderliness और integration की ज़रूरत है। हर इंडिविजुअल का अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, इसीलिए उनको एक कॉमन डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है in order to integrate the efforts. Second feature is ensure unity of action. Coordination always emphasizes on unifying the efforts of different individuals, because the conflicting efforts of different individuals may cause damage to organization. कि अगर individuals, जो different individuals हैं, वो एक दूसरे के साथ ही conflict करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तो obviously the organizational objective is hampered and the organization is damaged. So coordination is very important to unite all the activities and all the functions of the individuals in the organization. So coordination ensure that all the departments, they work hand in hand and create a balance in all the departments. It acts as a binding force in all the departments. अगर हम बात करें
डिपार्टमेंट्स की, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ हैं तभी एक कंपनी है. अगर ये अलग अलग काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने कंपनी के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. द थर्ड फीचर इज coordination is a continuous process. Dear students, coordination is a non-ending function. It is a continuous function although its degree may vary. डिग्री में वेरी का मतलब क्या हो गया कि कहीं पर हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कम हो सकती है, कहीं पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है. वो डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ मैनेजर्स या वर्कर्स पे, कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने हैं उस पर डिपेंड करता है. हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी कैसा है उस पर डिपेंड करता है. तो द डिग्री में वेरी. द मैनेजर्स वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली. तो रेगुलरली मैनेजर्स को हर टाइम कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तभी हम एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं. Fourth feature is responsibility of every manager. Coordination is not the task of only the top level managers, but जितने भी हमारे different level के managers हैं उन्हें coordinate करनी पड़ती है activities of the organization. But top level managers coordinate करते हैं हमारे overall plans and policies को. मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ जो कि करी जा रही हैं उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में. एंड लोअर लेवल कोऑर्डिनेट करते हैं वर्कर्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं इन द फैक्ट्री. सो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन केवल टॉप मैनेजमेंट ही करता है. कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर, हर लेवल के मैनेजर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करना. Next is deliberate function. Managers deliberately perform coordination to avoid confusion and chaos. Dear students, every manager tries to coordinate the activities of the organization so that हमारे organization के अंदर कोई confusion ना हो, कोई chaos ना हो. Without coordination, efforts of individuals cannot be united and integrated. और इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाए इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर कोऑर्डिनेशन फंक्शन को करते हैं ताकि कोई किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या कोई फेलियर ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑर्गेनाइजेशन में ना हो. इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन. ऑल परवेसिव का मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इट इज़ अ यूनिवर्सल फंक्शन. That means it is required at all the levels, in all the departments and in all the organizations, चाहे वो हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो. बिजनेस as well as non-business organization also requires coordination. So these are the features. Now we will be coming on our importance of coordination. Dear students, कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जैसे मैंने आपको बताया, और इट इज़ नोन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि बाकी जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो विदाउट कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ही नहीं है. वो एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स है जो कि हमारे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है. तो उसकी इम्पोर्टेंस करते हैं हम सबसे पहले. ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत एक्चुअली हमें तब पड़ती है जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ करेगा नंबर ऑफ पर्सन्स जो उसमें काम कर रहे हैं वो इंक्रीज़ करेंगे. ईच इंडिविजुअल के खुद के ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो उन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हमें एक साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. सो employees may have their individual objectives, but their goals and organizational objectives have to be harmonized together. That means जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है हर एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तब तक नहीं फुलफिल हो पाएगा जब तक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हमें हार्मोनाइज करना है एक दूसरे के साथ, तभी हमारा
ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशनल हो. सेकेंड इज फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन. स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, different sections and different divisions also. So and each department in isolation काम करता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है अपने डिपार्टमेंटल या सेक्शन ऑब्जेक्टिव्स को. बट अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिस करें, दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट. लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं ऑब्वियसली वो इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते हैं. So there is more need of coordination to minimize the differences among the departments. तो इसीलिए coordination की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि जो differences आ गए हैं organization में उनको remove करा जा सके, minimize करा जा सके. The third importance of coordination is specialization. Dear students, in large and modern organizations there is a need for high degree of specialization, और इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा स्पेशलिस्ट या वर्कर्स की हमें ज़रूरत हो रही है. एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन एज वी से दैट दे आर एक्सपर्ट्स इन टेकिंग द डिसीजंस. बट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, तो उससे तो कन्फ्यूजन और चाउस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में. सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ऑल द स्पेशलिस्ट, चाहे वो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का एक स्पेशलिस्ट हो या फिर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक स्पेशलिस्ट हो, वो स्पेशलिस्ट हैं लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर भी हमारा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. If the specialist activities they are not coordinated, we will not be able to achieve our organizational goal. So these are the three importance of coordination, which is very important. So all of you learn this, and there is a small worksheet which I have given. Only 4 questions I have given, so try to solve this worksheet and see your performance. I will be coming up with the second chapter of our business studies. Till then, thank you. Stay home, stay safe.